کی ہڈیاں اتنی پختہ ہوگی، غور سے سننا، کہ اس کی ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ باقاعدہ توڑنے کی کوشش کرے، لکڑیوں کے سوٹے اور لاٹھیاں ٹوٹ جائیں گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ٹوٹی ہڈی کو جوڑتی نہیں جوڑتی، یہ تو عمومی بات ہے نا۔ جس کو چوٹ لگی ہو، جس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو اور وہ گرم گرم روٹی اس گھٹنے پہ باندھ دیں جو گھٹنا چل نہیں سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اس میں طاقت اور قوت نہیں ہے، اور باندھ کے اس روٹی کے اوپر تیل لگائیں تلوں کا، پھر وہ روٹی باندھ دیں اور اوپر کوئی کپڑا وغیرہ گرم چیزیں باندھ دیں، یا کمر کے ان مہروں پہ جو کہتا ہے کہ میری کمر کا پرانا درد ہے اور کمر کے پرانے ڈسک کے مسائل ہیں اور وہ چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں، کمر کا آپریشن مہروں کا کرا چکا ہے اور بندہ عاجز آ چکا ہے، اس کو اس فقیر کا یہ ٹوٹکا بتا دو، کیونکہ ہلدی جوڑوں کا آخری علاج ہے۔ ہلدی کے استعمال کرنے والا کبھی دنیا میں کسی نے معذور نہیں دیکھا جو بساکھی لکڑی ڈنڈے کے سہارے یا انسان کے سہارے چل رہا ہو۔ ہلدی کے استعمال کرنے والے کو کبھی کسی نے معذور نہیں دیکھا، یہ ہلدی تو خود معذور کا علاج ہے، کسی نے معذور نہیں دیکھا۔ لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے ٹونک بتائیں۔ میں کہتا ہوں دودھ میں ڈالو ہلدی، پھر دیکھو مزہ۔ ہاں، ہلدی پیسو اپنی، 1 چمچ سے آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ دودھ میں ڈال لو، 1 کپ دودھ ہو، چاہے آدھا کپ ہو، 1 پیالہ ہو، دودھ میں ڈالو ہلدی، وہ دودھ پی کے دیکھیں، یا پھر یہ دودھ جلیبیوں والا دودھ جلیبیاں کھا کے دیکھیں۔ ہلدی کو ہم بھول گئے، ہلدی کو ہم نے ہڈی ٹوٹنے تک رکھا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹنے تک۔ ہلدی جو بندہ استعمال کرے گا، بتاؤں فائدے؟ آج وظیفہ بتاؤں یا ہلدی جلیبی کے فائدے بتاؤں؟ جو بندہ ہلدی استعمال کرے گا اس کی ہڈیاں اتنی پختہ ہوگی، غور سے سننا، کہ اس کی ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ باقاعدہ توڑنے کی کوشش کرے، لکڑیوں کے سوٹے اور لاٹھیاں ٹوٹ جائیں گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ٹوٹی ہڈی کو جوڑتی نہیں جوڑتی، یہ تو عمومی بات ہے نا۔ جس کو چوٹ لگی ہو، جس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو، اور یہ بھی اس لیے کریں گے کہ یا اللہ یہ جسم صحت مند ہو کر تیرے مدینے والے کی غلامی کرے گا، تیرے آقا کملی والے کی، ہاں یا اللہ، اس لیے ہلدی جو ہڈی ٹوٹی ہوئی کو جوڑ دے، وہ جسم کی تقویت اور ہلدی طاقت کے لیے کتنی زبردست چیز ہوگی، وہ ہلدی کتنی کمال ہوگا اس ہلدی میں۔ اب سوچیں تو صحیح کہ اس ہلدی میں کتنا کمال ہوگا، اس ہلدی میں کیا تاثیر ہوگی۔ میرے پاس اب تک جتنے بھی معدے کے السر کے مریض آئے، معدے کے زخم کے مریض آئے، میں نے ان سب کو ہلدی کا استعمال دیا۔ سالن میں ہلدی ڈالیں، دودھ میں ہلدی ڈالیں، آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں ہلدی ڈالیں، آٹا گوندتے ہوئے آٹے میں ہلدی ڈالیں، اور آٹے کی ہلدی والی روٹی کھائیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ جتنا آٹا ہو اس کی چوتھائی ہلدی ہو، اتنی ڈالیں، اس کی روٹی پکائیں، ایک سائیڈ اس کی روٹی کی پکی ہوئی ہو، دوسری سائیڈ پکی ہوئی نہ ہو، اور وہ گرم گرم روٹی اس گھٹنے پہ باندھ دیں جو گھٹنا چل نہیں سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، اور اس میں طاقت اور قوت نہیں ہے، اور باندھ کے اس روٹی کے اوپر تیل لگائیں تلوں کا، پھر وہ روٹی باندھ دیں اور اوپر کوئی کپڑا وغیرہ گرم چیزیں باندھ دیں، یا کمر کے ان مہروں پہ جو کہتا ہے کہ میری کمر کا پرانا درد ہے اور کمر کے پرانے ڈسک کے مسائل ہیں اور وہ چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، بیلٹیں باندھی ہوئی ہیں، کمر کا آپریشن مہروں کا کرا چکا ہے اور بندہ عاجز آ چکا ہے، اس کو اس فقیر کا یہ ٹوٹکا بتا دو۔ پھر سنو، جتنا ہلدی کا پیڑا ہوتا ہے، 3 حصے آٹا اور 1 حصہ پیسی ہوئی ہلدی،
मिला के उसकी रोटी पकाएं। रोटी का एक साइड पक जाए, कुछ ज्यादा पकाएं कि ऊपर वाली साइड गर्म हो जाए। उस गरम गरम के ऊपर तेल लगाएं और उस गरम गरम को जहां कमर है वहां अच्छी खासी तरह पूरी तरह चिपका दें और फिर बांध दें। चिपका के बांध दें जहां कोई घुटना है, और ये एक दिन लगा रहे। ऐसा कमाल है। मेरे पास एक साहब आए, उनके मोहरे हिलते नहीं थे और जाम थे, बिल्कुल जाम थे मोहरे, और वो बेचारा रुकू नहीं कर सकता था, सजदा नहीं कर सकता था, वो बैठ के उठ नहीं सकता था, कुर्सी में बैठता था बंदा, बिल्कुल उसके मोहरे। और 2 बार ऑपरेशन करा चुका था, लाखों रुपए लगा चुका था। ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ, नफा नहीं हुआ। बहुत से ठीक भी हो जाते हैं। तो मैंने उसे ये टोटका बताया और उसको मैंने अर्ज किया कि दूध जलेबी इस्तेमाल कर और हल्दी खाने में इस्तेमाल कर और दूध में इस्तेमाल कर। चाहे रात सोते हुए 1 चम्मच, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी दूध में मिला के, मीठे की जगह शहद मिला लें, शहद ना हो शक्कर मिला दें, गुड़ मिला दें, नहीं मिलाना तो फीका ही पी लें। उसके कमर का, जिसका मोहरों का मसला हो, कमर के डिस्क के मसाइल हो, और खवातीन में हो मर्दों में हो, ये हल्दी का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है। हल्दी एक और चीज देती है, हल्दी हमारी याददाश्त। आप एक चीज बताऊं, ये जो हमारा भेजा है ना, भेजा, ये हल्दी के रंग का है, हल्का सा पिलाहट होती है इसमें। हमारा जो अंदर भेजा है, दिमाग के अंदर मगज है, ये हल्दी के रंग का होता है, हल्का पीला होता है। और इसको हल्दी बहुत ज्यादा मौसर तरीन चीज है, बहुत जबरदस्त फायदा है। हल्दी जो बंदा इस्तेमाल करता है, उसकी याददाश्त इतनी मजबूत, उसका दिमाग इतना ताकतवर और उसकी जिस्म और दिमाग इतना सेहतमंद होता है कि एक पल के अंदर उसका दिमाग रोशन होता है और हर चीज का हल निकालता है। हमारे एक काजी साहब हैं, बूढ़े आदमी हैं, और किला डेरावर में, जहां ये जीप की अभी रैली होने वाली है, जीपों के किला डेरावर में, वहां के वो बड़े सरदार हैं। तो सहराओं के सफर में मेरे साथ जाते हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहने लगे हमारा यहां एक डाकू होता था, तो वो यहां कुछ नहीं करता था। वो उस वक्त से पहले जब तार नहीं फिरी थी, तो वो कहता था इंडिया में जाता था, बड़े बड़े सरदारों को लूट के फिर यहां आके गरीबों में तकसीम करता था। उसका अकीदा था, जबकि ये चाहे वो हिंदू को भी लूटा जाए, हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। इस्लाम में गैर मुस्लिम का भी माल जान का तहफ्फुज हमारे जिम्मे है। कहने लगे मैं उसके साथ 1-2 दफा सफर किया और फिर मेरे साथ बहुत रहा। वो बाज़ वक़्त वो कहता था कि आगे नाका लगा हुआ है, नहीं जाना, ये परिंदे ने मुझे बताया है। मैं कह रहा हूं, मैं कहता था उसको भगवान क्या कहते हो, चलो जाओ। कहने लगे बाज़ वक़्त तो मेरी बात में, वो कहता था नहीं, आगे रास्ता नहीं है, आगे यूं है, और जो वो कहता था वही होता था। और उसका हमने कई दफा उसकी बात को समझा और मेरी वजह से उसने खताएं भी खाई। तो मैंने उनसे पूछा आपने ये चीज कैसे हासिल की? उसने कहा हमारे यहां हिंदुओं में रिवाज है कि जब पता चलता है कि बहू हामला हो गई है, तो उसकी तरफ से एक मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, कुनाली मिट्टी की कूंडा, बड़ा बड़ा बर्तन, वो पानी का भर के रख दिया जाता है जंगल में, सहराओं में। उसमें से हर जानवर पानी पीता है और जानवर पानी भरते रहते हैं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, वो 9 महीने वाला पानी जिसको हर चरिंद, हर परिंदा, हर जानवर पीता है, वो पहली घुट्टी उस बच्चे को चंद कतरे वही लगाते हैं जब उसका शऊर बेदार होता है, हर जानवर की बोली समझता है, हर जानवर की आवाज समझता है, हर जानवर के इशारे समझता है। उसने बात बताई। एक तो ये बात कही। दूसरा कहने लगा कि उस डाकू का एक और मुशाहिदा था, वो हमेशा हल्दी इस्तेमाल करता था। हल्दी
उसकी पोटली में हल्दी होती थी पीसी हुई, और वो जहां से उसको दूध मिलता था यूं पोटली खोली और यूं हाथ से उंगली से भर के हल्दी डाली और पी ली। पानी दूध फीका है, मीठा है, कुछ नहीं है, ठंडा है, गर्म है, कहने लगे कुछ है, हल्दी पीता था। तो कहने लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हल्दी क्यों पीते हैं? तो उसने कहा कि वे हल्दी का दिमाग से जोड़ है। ये देहाती बातें हैं और हमारी साइंस सारी यही कुछ कहती है जो देहाती बातें कह रही है। आप सारी की सारी हल्दी को उठाएं नेट की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, आपको मेरी सारी बातें साइंस से मिलेंगी। तो कहने लगा हल्दी का दिमाग से जोड़ है। जो बंदा हल्दी इस्तेमाल करता है उसका दिमाग, उसका हादसा सेहतमंद रहता है, फिर उसका दिमाग हाजिर दिमाग रहता है, और कोई दुनिया की मुश्किल उलझन आ जाए उसी वक्त उसका दिमाग उसको हल देता है। इसलिए मैं हल्दी इस्तेमाल करता हूं, इसलिए हल्दी इस्तेमाल करता। दिमाग देखें, वो अपनी मुजरिमाना जिंदगी के लिए हल्दी इस्तेमाल करता था। वो डाकू था, उसे पता था कि मैंने बॉर्डर की जो है वो रेंजर और सिक्योरिटी से ही बचना है, मैंने जहां डाका मारना है वहां कुत्ते से ही बचना है। अपना दिमाग इस्तेमाल करता था। एक ज़हन ये इस्तेमाल हो रहा, एक ज़हन ये इस्तेमाल हो रहा, और एक इसलिए कर रहा कि मौला तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा, और इससे मुझे जो कुव्वत आएगी, मेरे दिमाग जो रोशन होगा, मेरा दिल रोशन होगा, मेरे आसाम मजबूत होंगे, मेरी कमर, मेरी टांगें, मेरे पट्टे, क्योंकि हल्दी जोड़ों का आखिरी इलाज है। हल्दी के इस्तेमाल करने वाला कभी दुनिया में किसी ने माजूर नहीं देखा जो बिसाखी लकड़ी डंडे के सहारे या इंसान के सहारे चल रहा हो। हल्दी के इस्तेमाल करने वाले को कभी किसी ने माजूर नहीं देखा। ये हल्दी तो खुद माजूर का इलाज है, किसी ने माजूर नहीं देखा। एक ज़हन ये चल रहा, दिमाग देखें कैसे कंप्यूटर की तरह चल रहा, कंप्यूटर की तरह चल रहा। एक दिमाग ये है कि मौला ये मैं करूंगा, कैसे मैं इंसानियत को नफा दूंगा, मखलूक को नफा दूंगा, और मखलूक के लिए मैं खैर का जरिया बनूंगा, और मखलूक के लिए मैं राहत का जरिया बनूंगा। अल्लाह तेरे बंदों को अकेला जन्नत में नहीं साथ ले जाऊंगा। अल्लाह कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई कर्जे में है, कोई मर्ज में है, कोई फर्ज में है, अल्लाह कोई मसाइल में है, कोई उलझनों में है, अल्लाह तेरे मदीने वाले का कौन सा राज मैं उसका बताऊंगा कि वो मुश्किलात से निकले, परेशानियों से निकले, उलझनों से निकले, अल्लाह उसका काम बन जाए और उसके मसले हल हो जाए, और मैं क़यामत तेरी बारगाह में जब जाऊं तो तू राजी हो और तू कहे कि तू वही है ना जो मेरे बंदों को राहत पहुंचाता रहा, मेरे बंदों के काम आता रहा, मेरे बंदों को सच्ची राहें दिखाता रहा, और मेरे बंदों को सच्चे रास्ते दिखाता रहा, वही है ना। तो हमने तो ग़िज़ाएं भी इसलिए खानी है, हमने तो टॉनिक इसलिए खाने हैं। एक बुजुर्ग थे, आज से कोई 80-85 साल पहले उनका 4.5 रुपए का सुबह का नाश्ता होता था। 4.5 रुपए का सुबह का नाश्ता होता था। तो किसी ने पूछा, हजरत ये नाश्ता क्यों करते हैं? फरमाया, मैं इस दिमाग से अल्लाह की मखलूक को राहत देता हूं, तस्बीह, वजीफा, तफसीर, अल्लाह का नाम, मखलूक की तरबियत, इस दिमाग को मैं सर्विस दे रहा हूं, खिदमत दे रहा हूं, इसलिए कि मैं इससे लेता हूं, इस दिमाग से लेता हूं। तो हम ये चीजें क्यों इस्तेमाल करेंगे? इसलिए कि हमारा जिस्म मजबूत हो। और किस लिए हो? अल्लाह को राजी करने के लिए। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो याद आई। वो ये अर्ज कर रहा था कि हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं। ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके भी मुर्शिद के मुर्शिद थे, मुर्शिद के मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा नूर महारवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ख्वाजा नूर महारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये चिश्तिया में इनका मजार है, जिला बहावलपुर चिश्तिया, तो बहावलपुर रियासत में है इनका मजार। तो वो हजरत एक अजीब काम करते थे। हजरत के यहाँ जो 40 दिन गुजारते थे उनको आधा पाव घी देते थे, और यही हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह करते थे, ख्वाजा सिराज साहब करते थे जिनके नाम पे खानका सिराजिया है। तो आधा पाव घी देते थे और 3 अंडे देते थे, आधा पाव घी, 3 अंडे और आधी छटाक हल्दी देते थे। हर उस बंदे को जो सरकार के यहां चिल्ला करने आता था, और फिर उससे जलाली जिक्र करवाते थे।
कौन सा जिक्र? हाँ, जलाली जिक्र करवा था। हल्दी पूछा क्यों सरकार देते हैं? फरमाया हल्दी इस्तेमाल करने वाले के जब जिक्र जलाली होता है ना, जिस्म का अंग अंग जोड़ जोड़ उस जलाली जिक्र की वजह से हरकत में आता है। हाँ, जोड़ जोड़ हिलता है, जोड़ जोड़ हिलता है और जिक्र में आता है। और हर जोड़ जिस्म का ऐसे है जैसे रिजदान में आ जाता है। तो शहंशाह फरमाते हैं कि हम हल्दी इसलिए देते हैं इनके जोड़ मजबूत रहे, कहीं ऐसा ना हो एक दफा जिक्र करने के बाद लोग इनको उठाएं बिठाएं हाजत के लिए, सारे ही जोड़ हिल जाएंगे, बाकी बचेगा क्या? जोड़ मजबूत रहे। और घी इसलिए कि खुश्की ना हो, खुश्की ना हो, और इनके दिमाग में खुश्की ना हो। तो दूध जलेबियों से दोस्ती लगाएंगे। ये मैं आपको फितरी गिजाएं जानबूझ के बता रहा हूं। मैंने अर्ज किया ना, मुझ पे सवाल है बार बार कि हमारी नस्लों के लिए बताएं। मैं जानबूझ के ये चीजें बता रहा हूं। आज इंसानियत फितरी गिजाओं से दूर हो गई है। अपनी गिजाओं की तरफ तवज्जो करें। ये आज आपकी फरमाइश में मैं कुछ गिजाएं बता रहा हूं, वो गिजाओं की तरफ तवज्जो करें। हम कौन सी गिजाएं खा रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी, कहा कायनात की दुनिया की बेहतरीन फौज चाहते हो तो मुझे कुछ माएं दे दो और कुछ सादा गिजाएं दे दो। मैं दुनिया का आखिरी फातेह बनूंगा और ऐसी फौज दूंगा जो दुनिया में कभी भी नाकाबिल तस्खीर, उसको फतह कोई नहीं कर सकता। सादा गिजाएं दे दो मुझे, सादा गिजाएं। कभी बच्चों को बासी रोटी और मक्खन भी खिलाया। आप कहते हैं ना आप मुझे टोट के बताएं, तो मैं बता रहा हूं। बासी रोटी, और रोटी भी ऐसी जो तंदूर की लगी हुई हो, और तंदूर भी ऐसा ना हो जो गैस वाला ना हो, लकड़ी वाला या उपलों वाला, गोबर वाला जिसमें जला हो। और रोटी भी ऐसी हो जो पानी से लगी हो, हाथ और पानी वाली, थापी वाली रोटी नहीं। और रात को उस पे पानी का छींटा मार लपेट के रख दें, सुबह मक्खन, वाकई मक्खन हो, देसी मक्खन, उसके ऊपर शक्कर डाल या शहद डाल के खा के देखें।